Once again, a very good evening to all of you, dear students. Yes, we are live now, and today we have to complete our chapter which we had been discussing in our previous class. Okay, आज हम लोग को इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करना है, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, एंड सक्सेसफुली वी हैव डिस्कस हाफ ऑफ द चैप्टर. राइट एवरीवन? चलिए बोलिए हाँ या ना. आधा हमने कंप्लीट कर लिया था ना. यस गाइज, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट डिबेट टुडे. हम लोग आज डिबेट के बारे में बात करेंगे. यस, as you all are saying that regarding debate, next class will be held on debate. Next जो हमारा क्लास होगा basically it will be on debate. ये हमारा डिबेट का ही टॉपिक रहेगा. as I have provided you topic is गवर्नमेंट जॉब बेटर देन प्राइवेट जॉब. सर टीम बन चुकी थी. यस, हाँ कांक्षा, टीम बन चुकी है. आदित्य, आई थिंक फ्रॉम योर साइड देयर इज अ प्रॉब्लम इन नेट, दैट्स व्हाई इट इज ऑकरिंग. इसलिए ऐसा हो रहा है. Here there is no any problem. I hope that you all are listening me very clearly, right? Yes आकांक्षा, ये हमारा टीम बन चुका था. आज हम लोग उस पर भी बात करेंगे. लास्ट में I will give you chance. Okay, I will unmute to all of you and one by one I will hear your also opinion and just make notes regarding that. मैं उसका एक नोट्स भी बना लूंगा. ठीक है ना, कि कौन किसके टीम में है. ओके, सो कैन वी स्टार्ट. जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे थोड़ा सा इस पे आते हैं. सो वी वर डिस्कसिंग अ चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज, राइट? एंड हु हैज विजिटेड कैम्ब्रिज? ये मेरे को पहले बताइए कि कैम्ब्रिज में विजिट कौन किया था. वहां पे जाने के बाद किससे मिले लो. सो हु इज गोइंग टू स्पीक फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर विच वी हैव कंप्लीटेड? रेज योर हैंड. फिरदौस कंगा. यस पूर्णिमा, यू आर सेइंग राइट. And it is the hand of Purnima. Okay, apart from Purnima, except Purnima, I want to hear that. Anyone guys who is interested to speak about this? Firdaus Kanga made Stephen Hawkins. Very good upper med. क्या बात है त्रिवेदी जी. Very good. Firdaus Kanga. Very good. Very good अभी. Now, so इसमें हम लोग कितने पेज तक कंप्लीट किए थे इसकी थोड़ी सी बात की जाए. पूर्णिमा, एक्सेप्ट पूर्णिमा, I want to hear from anyone. I will give chance Purnima at last. Okay, before that I want to hear from all of you guys. So can I take the name of Aparme? Aparme, will you speak? Aparme. Okay, bolo. What have you read in this chapter? बताइए मेरे को. Yes, Aparme. I cannot hear your voice. Is there any problem? Speak. Okay, Purnima. I will ask to Aparme after some times. Now let me start from you. Okay, speak. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. This is a story about two extraordinary persons who are physically disabled and also use a wheelchair for their movement. First one is Firdaus Kanga and second is Stephen Hawking. Firdaus Kanga is a writer and journalist from Mumbai, India, and Stephen Hawking is one of the most brilliant astrophysicists in the world. His name is often compared with Isaac Newton too. Okay, and very good. Firdaus Kanga visited England, where his guide told about Stephen Hawking. That Stephen Hawking has now been physically disabled, and he is very successful in his life also. So Firdaus Kanga thought that about the Stephen Hawking, that he is the author of the Brief History of Time also, which was the best books. Which was one of the best book ever seen in the world. And then he rushed to the phone booth to call Stephen Hawking for taking an appointment to speak. And when he called Stephen Hawking home, Stephen Hawking's assistant pick up the phone, and Firdaus Kanga asked for some time, even minimum 10 minutes, to talk to
Stephen Hawking and told that he had come from India and on the wheelchair. So his assistant gave him 30 minutes time to talk to Stephen Hawking, and the time came when the Firozdar Kanga meet Stephen Hawking. He started feel all weak all over, means he was nervous too. And when he started to talk, their conversation started. So when they were speaking, Firozdar Kanga felt guilty that he is speaking again and again, but Stephen Hawking is unable to answer, and he is just typing he's moving the he's just giving the movements of finger on the typing board, and he's giving his reply. So he felt himself guilty. He also asked Stephen Hawking that it also feel annoying. It must be annoy you if someone's disturb you in your Okay. work when someone comes to talk to you. And he also disliked that when people show him fake careness, or when some people patronize him. Okay, very So good. is a he also the Stephen Hawking replied that Stephen Rock Stephen As Hawking you are discussing, had really, it's very good, very good, very good. You have said very well. Now guys, let us come into moot point. चलिए हम लोग मेन विषय पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं. As we have read about that, you have discussed very well. तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट कि वो पहले तो आते हैं कैम्ब्रिज में घूमने के लिए. कौन? तो फिरदौस कंगा. ओके, राइट राइट. तो ये जो हमारे फिरदौस कंगा हैं वो आते हैं पहले तो ये इंग्लैंड में कैम्ब्रिज घूमने के लिए, बट एज ही वाज देयर, ओके, वहां पे उनको एक गाइडर मिलते हैं. ही इज टॉकिंग अबाउट दैट द स्टेफन हॉकिंस आल्सो एंड डूइंग कंपैरिजन विथ आइजक न्यूटन, राइट. तो यहाँ तक हमने देखा था. उसके बाद ही वाज ईगरफुल टू मीट दैट द पर्सन, वो मिलने के लिए आते हैं. बिफोर दैट ही हैज आल्सो टेकन परमिशन फ्रॉम द पर्सन हु इज वर्किंग एट द रेसिडेंस ऑफ, ओके, स्टीफन हॉकिंग. जो स्टीफन हॉकिंग के घर पे वर्क करते हैं उनसे वो असिस्टेंट जो है स्टीफन हॉकिंग के, उनसे वो क्या करते हैं तो समय लेते हैं. आफ्टर दैट ही गॉट 30 मिनट्स टू मीट हिम. उनको अगले दिन में, ठीक है ना, आधे घंटे का समय मिलता है. और वो ड्यूरेशन कब से कब का रहता है? टेल मी गाइस, कब से कब के बीच का वो ड्यूरेशन रहता है? यू हैव टू टेल मी, बताइए. 3:30 to 4. ओके, वेरी गुड. तो चलिए ये समय रहता है. उसके बाद वो मिलते हैं, देखते हैं. अब देखो, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना. आपने पढ़ा भी होगा, इफ anyone who has not able to watch the first video, then you have to also watch that the first video, and after that you will understand each and everything. अभी तक आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा होगा, if you still have not watched the first video, then you have to watch. Okay guys, and after that you can understand this chapter very easily. So let us moving forward guys, and at glimpse, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है. we have to start from that place, right? at the first glimpses of him is shocking. अब देखो, first glimpse means कहने का मतलब क्या है? what do you understand by glimpse? first of all you have to underline this word. glimpse means होता है ना झलक. तो at first glimpse of him यानी किसका है? झलक. तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग की बात हो रही है. स्टीफन हॉकिंग की बात हो रही है. जब उनका पहला जो झलक था वो काफी ज्यादा क्या था? शॉकिंग था. क्या था? शॉकिंग था. क्यों? अभी हम लोग देखेंगे क्यों शॉकिंग था. बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, एज if all those picture of him in magazine and newspaper have turned 3-dimensional. ठीक है. तो वो बता रहे थे ना कि when I have seen the first time Stephen Hawking, ओके, तो मैं क्या हो गया ना, काफी ज्यादा शॉक हो गया. ये क्वाइट इनफ शॉकिंग था. ऐसा क्यों था? बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. वो एकदम फोटोग्राफ की तरह दिख रहे थे. अरे बात समझ में ना, जैसे कि जनरली हमने स्टीफन हॉकिंग का फोटो देखा है तो ही वाज ओनली लुकिंग लाइक दैट. बस डिफरेंस क्या था कि फोटो में आप देखोगे तो वो 2D रहता है, ठीक है ना, 2D दिखता है. बस ऐसे वो क्या दिख रहे थे तो 3D में दिख रहे थे, 3 डायमेंशन में दिख रहे थे. यहां तक प्रॉब्लम हो रहा है क्या फर्स्ट लाइन समझने में? किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या फर्स्ट लाइन एक समझने में?
एट फर्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ हिम इज शॉकिंग, पहला जो उनका झलक था, जो पहला बार उसको उन्होंने देखा, ठीक है ना, फिरदौस कंगना ने पहले बार जब स्टीफन हॉकिंग को देख रहे हैं तो वो शॉक हो गए। क्यों? बिकॉज ही इज लाइक स्टिल फोटोग्राफ, एकदम फोटोग्राफ की तरह, एक स्थिर फोटोग्राफ की तरह दिख रहे थे। क्यों? एज इफ, मानो कि, ठीक है ना, if all those picture of him in magazine and newspaper have turned three dimensional, जैसे कि ऐसा लग रहा था ना कि मैगजीन और पेपर में क्या है, तो इनका जो पिक लगा हुआ है वो थ्री डायमेंशनल है। अरे बस समझना, पहले क्या होता है कि आप पेपर में देखोगे, मैगजीन में देखते हो तो टू डायमेंशनल डायमेंशनल आपका क्या होता है, पिक होता है। बट जैसे कि उनके सामने से देखने में बस यही फर्क दिख रहा था कि वो थ्री डायमेंशनल दिख रहे थे और कुछ नहीं, ऐसे ही लग रहा था कि एकदम एक पिक है, ठीक है ना, वैसे ही इंसान है, देयर वाज नो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। अब आगे देखते हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the vested legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. अब देखो यहाँ पे क्या बताया जाए, देन यू सी द हेड, ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने क्या देखा, वो बता रहे हैं यहाँ पे जो, ठीक है ना, फिरदौस अंगा है, वो बता रहे हैं कि जैसे मैंने उनका सर देखा ना, तो वो क्या, देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड्स वे, मतलब वो ट्विस्ट हो रहा था ऐसे, ऐसे दोनों तरफ वो ट्विस्ट हो जा रहा था इनटू अ स्लम्प। स्लम्प कहने का मतलब क्या होता है, अ वे दैट इज सॉफ्ट एंड नाइदर फर्म नॉर स्टिफ लिम्पली, बिल्कुल जैसे कि सर में कोई जान ही ना हो, एक तरफ करने के बाद एक तरफ सर हो जा रहा था, दूसरी तरफ करने के बाद दूसरी तरफ हो जा रहा था, तो प्रॉपर्ली ना स्टैंड, जैसे हम लोग का सर क्या होता है बीच में स्टैंड हो जा रहा है, वैसा उनका नहीं होता था, ठीक है। यानी स्लम्प कहने का मतलब है कि बिल्कुल जान ना हो, जान ही नहीं था उनके हेड में। आ रही बात समझ में ना? अगर इफ यू वांट टू राइट द मीनिंग ऑफ स्लम्प, देन यू कैन राइट अ वे दैट इज सॉफ्ट, a way that is soft and neither firm nor stiff limply। हमारी बात समझ में? तो पहले हमने अपीयरेंस देखा उनका, तो एकदम फोटोग्राफ की तरह दिख रहे थे, वो ऐसा बता रहे हैं फिर दोस्त अंगा। फिर दूसरा चीज वो क्या बताया, उनके सर के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या लग रहा था कि सर में दम ही नहीं है, एक तरफ जाने के बाद एक तरफ पड़ जा रहा था, दूसरे तरफ जाने के बाद दूसरे तरफ हो जा रहा था। अब देखो, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, टॉर्सो। टॉर्सो, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया टॉर्सो, यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड गाइस, ओके। एंड बी विथ बुक्स, I am saying to everyone, you people have to sit with NCERT book, which is a chapter 7 entitled as a Cambridge to a visit to Cambridge। हमारी बात समझ में ना? तो बुक के साथ बैठिए, बिकॉज एनी टाइम हम आपको कर सकते हैं, किसी भी समय पे बोल सकते हैं कि कैमरा ऑन करो, ओके। हमारी बात समझ में ना? सो बी रेडी गाइज, एंड आई विल आस्क ईच एंड एवरीथिंग विच आई एम टीचिंग राइट नाउ। एक एक लाइन का मीनिंग समझा रहा हूँ, दो दो बार, तीन तीन बार। सो बी रेडी, पूछूंगा भी वैसे ही। आ रही बात समझ में? अब देखो, टॉर्सो मिस होता है ना, अंडरलाइन दैट वर्ड, टॉर्सो मिस होता है क्या, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। अब देखो, टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट्स, अब देखो उनका शरीर ऐसा लग रहा था ना कि एक कपड़े में केवल पड़ा हुआ है, एक क्या होता है, ढीले से कपड़े में पड़ा हुआ, मतलब एकदम पतला सा कमजोर सा उनका शरीर। द वेस्टर्न लेग्स, यानी कि उनका पैर जो था वो क्या था, काफी ज्यादा वीक और कमजोर, काफी पतला और कमजोर। वेस्टर्न लेग मतलब, वेस्टर्न मीन्स क्या हो गया, वीक एंड थिन, वीक एंड थिन। जो उनका पैर था वो काफी ज्यादा पतला था और कमजोर था। ओके एवरीवन, आई बात समझ में ना? एंड यू लुक एट हिज आई, अगर तुम उनकी आंखों में देखते हो, विच कैन स्पीक, वो कुछ बोल रहा था, वो कुछ बताना चाह रहा था, उनकी आंखें कुछ कहनी चाह रही थी, स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो कुछ बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कुछ बताना चाहता था। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, ये बताना कठिन है कि वो क्या बताना चाह रहा था, उनकी आंखें क्या इंडिकेट करनी चाहती थी, उनकी आंखें क्या हम लोगों को, ठीक है ना, बताना चाहता था, ये काफी हार्ड था, ठीक है ना, बताना। बट मेरे को लग रहा था कि उनकी आंखों से कि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, ओके। ये भी हम देखे हैं ना कि वो कुछ बोल नहीं पाते थे, बस उनकी फिंगर क्या करती थी, वो वर्क करती थी, इन स्पाइट ऑफ दैट उनका कोई भी बॉडी वर्क नहीं करता था। हमने देखा है ना फर्स्ट पार्ट में कि वो क्या करते थे, एक मशीन पे टेक्स्ट करते थे तो वो आवाज निकलता था, वो मशीन बोलता था कुछ मिनट के बाद, राइट। जो भी वो टेक्स्ट करते थे तो मशीन कुछ मिनट के बाद बोलता था हाँ या ना, टेल मी गाइस, यस और नो, अरे बोलो यस और नो, बोलो 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 आप सभी, यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शुभम, पीयूष, he punch on buttons which spoke his words, yes upper मैं, you are right,
पंच करते थे वर्ड को और वही वर्ड निकलता था। अब देखो उसमें भी एक कारण था। अब जैसे कि हम लोग होता है, अगर आपकी मम्मी सपोज करो आपको मारती है स्लैप, आप तो एकदम हंस के बोलोगे वाह मम्मी क्या किया आपने, राइट? बोलते हो ना? कौन कौन बोलता है ऐसे, या आज मम्मी के हाथ से पिटाएंगे मजा आ गया? कौन कौन ऐसे है? कौन कौन ऐसे है बताओ? नो सर, नो सर, बहुत जोर के लगती है। अपर में बोल रहा है कि सर हम मम्मी के हाथ से पिटाने से अच्छा कहाँ से लगता है? पूर्णिमा बोली है कि मारी नहीं खाते हैं। अच्छा रुको आज कंप्लेन करते हैं पूर्णिमा, डेफिनेटली पिटाई होगी तुम्हारी। ओके, तो देखो एक्चुअली गाइज, हाँ सर हम भी, अच्छा तुम भी नहीं खाते हो, ठीक है करते हैं सभी के पास कॉल, तुम लोग की मम्मी से शिकायत करते हैं। ओके, तो देखो गाइज यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता था, ठीक है ना, खेल खेल में हम लोग क्या समझना चाहते थे, ठीक है। अब देखो जब वो पंच करते थे ना वर्ड को, तो देखो एक ही अगर खुशी वाले वर्ड को भी बोलेंगे, हैप्पी वाले वर्ड को भी, मतलब सपोज करो कि वो फील खुश हो रहे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तब भी लगता था कि हाँ सिंपल सा वर्ड है। गुस्सा के भी बोलते थे तो लगता था कि हम वैसे ही वर्ड है, लेकिन हम लोग का होता है ना इमोशन, अगर गुस्साते हैं तो दिखता है हमारे टोन से, इन्फ्लेक्शन, द मॉड्यूलेशन ऑफ स्पीकिंग, उसी को इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसे मालूम चलता है कि नहीं। लेकिन ये तो पंच कर रहे थे तो एकदम जैसे होता नहीं है कि एक नॉन लिविंग थिंग बोल रहा है, एक्चुअली वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना, मशीन, ठीक है, तो उससे आवाज निकल रही, ठीक है। वेरी गुड गाइज, अब देखो समझ में आई बात? ओके, इट इज हार्ड टू टेल वर्ड, ठीक है, बट यू आर सेकेंड बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? अब देखो बिफोर यू लाइक अ लालटेन, अब देखो लालटेन को आप देखे होंगे, आप होप, आई होप सभी को देखे होंगे लालटेन को आप लोग। बिफोर यू लाइक अ लालटेन whose walls are once so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man। अब देखो समझना, जब आप लालटेन को देखते हो ना तो बाहर से काफी ज्यादा, अगर आप किसी पुराने लालटेन को देखो तो बाहर से बहुत ही वाइट दिखता है, नॉट लुकिंग अट्रैक्टिव, बट उसका मेन पर्पस क्या होता है, हम लोग देखते क्या, उसकी प्रकाश को, क्या देखते हैं, प्रकाश को, कि रोशनी की तरह, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, राइट? होता है कि नहीं होता है? वैसे ही सेम कंडीशन होता है इंसान के साथ भी, द बॉडी, ठीक है ना, ठीक है, is the incandescence, okay, of a man, the body almost irrelevant, exit only like a case made of shadows, so that I know believer in internal souls know that this is the what each of us, everything else an accessory। अब देखो पहले बोला है ना कि जैसे कि मेरे को इंटरनल सोर्स जो होता था ना उस पर बिलीव नहीं होता था, ठीक है ना, इस चीज को मैं नहीं मानता था सोल्स को, ठीक है, बट इनसे मिलने के बाद मैंने समझा कि आपका इनर क्वालिटी क्या होता है ना, दैट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। अगर देखो जैसे कि हम सिंपली बोलते हैं ना कि बहुत लोग ज्वेलरी पहनते हैं तो वो क्या है, कुछ हद तक आपको खूबसूरत दिखाएगा, ठीक है ना, इट इज अ सच काइंड्स ऑफ आइटम विच कैन एनहेंस योर, ओके, ब्यूटीनेस, यानी कि वो आपको खूबसूरत बना सकता है, अरे बात समझ में। लेकिन वो एक एसेसरी है, ठीक है ना, एसेसरी है, वो खूबसूरती आपका एक एसेसरी है, उससे ज्यादा नहीं है। मेन चीज क्या है आपके बारे में, वो आपका एजुकेशन बताता है, आपका टैलेंट बताता है, आपका सोल बताता है वो कितना सही है, अरे बस समझे ना, वही चीज को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हम लालटेन की तरफ नहीं देखते हैं तब भी उसका इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना, उसके लाइट पे, इनसाइड द लाइट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे ही ह्यूमन बीइंग का होता है, इट डजंट मीन दैट हाउ मच यू आर गुड फ्रॉम योर, ओके, body, how much you are good from your body gesture and posture, okay, it is most important for you how much you are educated and as well as how much you are behaving in a good way with others, ये आपके लिए important होता है, and how do you are going to treat, this is most important, okay। how do you think is the best thing about being disabled। अब देखो फिर क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछते हैं, कौन पूछा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये कंगा जी क्वेश्चन पूछते हैं किससे, तो स्टेफन हॉकिंग से, ओके। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। अब देखो ये भी बात कोई हुआ क्या, तो पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए मेरे को, और बोल रहे हैं कि आई हैड आस्क्ड अर्लियर, ओके, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। अब पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए मेरे को, ठीक है ना, डिसेबल्ड होने में, होने का सबसे बढ़िया चीज क्या है, आप मेरे को बताइए, कुछ इसका प्रॉफिट बताइए, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि मैंने ये पहले क्वेश्चन पूछा था, इसका कोई प्रॉफिट होगा, देखो यहाँ पे एसेसरी का मीनिंग भी दिया है, नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा थ्यू डेकोरेटिव, ये आपको क्या बनाता है, डेकोरेटिव बनाता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। नॉट इसेंशियल, ये मतलब अगर आपके पास रहे भी ना भी रहे दैट इज ओके,
अरे बस समझ में ना, विच आई हैव डिस्कस्ड, तो एसेसरी की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। अब देखो इन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा था स्टीफन हॉकिंग से। वो क्या क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, यानी आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान डिसेबल्ड है तो उसमें बेस्ट थिंग क्या है, सबसे बढ़िया चीज क्या है। आई थिंक सेड यू, अब देखो क्या बोलते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी गुड हैबिट बीइंग डिसेबल्ड। अब बोलते हैं मेरे को ऐसा नहीं लगता है ना कि कोई भी बढ़िया चीज होगा। सही बात है भाई, ठीक है। डिसेबल होने के बाद बढ़िया चीज क्या, आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। बस बोलेंगे, बस तुमको यही मालूम चलेगा ना कि वर्ल्ड में कितना काइंडनेस है, हाउ डू पीपल रिएक्ट, देखते नहीं हो डिसेबल से वो लोग कैसे बात करते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि बस आपको यही देखने को मिलेगा कि दुनिया में कितने काइंडनेस है और कुछ नहीं। यस ही सेड इट वाज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection। मैंने पहले ही बोला था ना आपको, देखो यहाँ पे नो नो इन्फ्लेक्शन, नो सैड्स और टोन। अब देखो बोल रहे हैं, ठीक है ना, यस ही सेड, उन्होंने बोला हाँ, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, यस ही सेड, कौन बोलते हैं, स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब जो हमारे ऑथर साहब है वो क्या बोलते हैं, ही सेड he it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection। अब बोले थे ना कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, ठीक है ना, उन जो पंच कर रहे थे और मशीन आवाज निकाल रहा था वो बोल रहा था, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था ना कि उसके बोलने के तरीके में ना कोई मॉड्यूलेशन नहीं था, यानी कि कोई बात से ये मालूम चले कि वो जो स्टीफन हॉकिंग से मेरे से बात करके खुश हो रहे हैं या स्टीफन हॉकिंग से मेरे से बात करके गुस्सा हो रहे हैं, सच काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन मेरे को मालूम चले। लेकिन कुछ यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, एंड इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। सो बी केयरफुल व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन, इस लाइन को समझने के वक्त आप बहुत ही ज्यादा सावधान रहिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखो एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी, ठीक है ना, और इसीलिए बोले ना मैंने सब नहीं, ठीक है ना, बता सकता था कि कितना वो इंथुजियास्टिकली है, एग्री है, ठीक है ना, मेरे बातों से कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो सारा कुछ वो सोच रहे थे, ठीक है। कौन, फिरदौस खंगा, ओके। नहीं वो पंच करते थे बाबू, सर्च करके, जैसे हम लोग आज देखते हो ना, यू कैन अंडरस्टैंड ना शशांक, कि अगर हम लोग को कुछ टेक्स्ट करना रहता है देन वी आल्सो टाइप, जैसे हम लोग टाइप करते हैं, तो इट वाज सिमिलर टू दैट मशीन, उस मशीन में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर था, ठीक है। बस सिंपली तुम ये समझो कि वो पंच करते थे, जो भी उनको कुछ बोलना रहता ना देन ही वाज पंचिंग, ओके। वो पंच करते थे एंड आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू मिनट्स देयर वाज अ साउंड कमिंग बाय दैट मशीन, उस मशीन से आवाज निकलता था, ठीक है। अब देखो एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। अब बोल रहा है ना कि एवरी टाइम, थोड़ी थोड़ी देर में ना मैं समय को देख रहा था, ठीक है ना, कि ज्यादा समय तो निकला नहीं ना, अरे ज्यादा समय निकला नहीं, बिकॉज ही हैड ओनली 30 मिनट्स गाइस। तो यही बताना चाहते हैं कि प्रत्येक समय पे ना मैं अपने, ठीक है ना, आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट, ठीक है ना, अपने रिस्ट वॉच को, ये क्या कर रहा था, रिस्ट वॉच को टर्न कर रहा था और समय देख रहा था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन आवर 30 मिनट्स काउंट, और बोला ना मैं चाहता था कि जो भी मिनट्स है ना, प्रत्येक मिनट्स को मैं ना वर्दी बनाऊं, योग्य बनाओ, इनसे मिलने आया हूं तो। आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन, ओके, in the possibilities of my body, how little it mattered then that I would never walk or even stand। okay, अब देखना है सबसे सिंपल सा तुमको हम कहानी बताते हैं, ओके, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। सपोज करो आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा दुख है, ठीक है ना। अब सपोज करो, अब सिंपल सा एग्जांपल लो, ठीक है ना, सपोज करो कि तुमको लगता है कि तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा तुमको मारती है, ठीक है। तुम सर्च करो, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई एक दोस्त जरूर ऐसा होगा ना कि उसकी मम्मी तुम उसकी मम्मी तुम्हारी मम्मी से भी ज्यादा उसको मारती होगी, ठीक है, होगा ना कोई, मे बी मिल जाए, मे बी मिल जाए, हाँ या ना, टेल मी। या सपोज करो कि तुम्हारी मम्मी तुमको डांटती है, तुम बेचारे बहुत दुख, ठीक है, मारती है नहीं तो डांटती है, ये भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो तुमको लगता है मेरी मम्मी गजब का मुझे डांटती है, सुबह में उठने समय डांटना, रात में पढ़ के जाओ उसके बाद भी डांटना, सेलफोन यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा, अरे बात समझ में ना। लेकिन तुम्हारा यार दोस्त मिलता है कोई और तुमको मालूम चलता है कि तुम्हारी मम्मी से भी ज्यादा, ठीक है ना, उसकी मम्मी उसको डांटती है, तब तुमको एक रिलीफ मिलता है, अरे हम ही नहीं है, ठीक है ना, अरे बात समझ में ना।
कि इसकी मम्मी भी, ठीक है ना, मेरी मम्मी से ज्यादा डांटती है, यानी कि मेरे से भी ज्यादा कोई है इंसान। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि तुमने 7th का एग्जामिनेशन दिया, ओके, तुम्हारा परसेंटेज आ गया 60%। अब तो है कि घर पे जाएंगे तो मम्मी कस के, पापा कस के पिटाई करेंगे, ठीक है। तब तक तुम देखते हो कि तुम्हारा एक दोस्त तुमसे ज्यादा पढ़ता था, हालांकि ऐसा होता नहीं है गाइस, ज्यादा पढ़ता था, और उसका परसेंटेज आ गया कितना, ठीक है, 50%। अब बताओ तुमको सैडनेस होगा कि रिलीफ मिलेगा? सभी कोई बताएगा, अपने पे एग्जांपल लेना है एंड टेल मी, ठीक है, तुमको रिलीफ खुशी मिलेगा या सैड होगे? पूर्णिमा बोलिए कि सर रिलीफ, ओके, रिलीफ। नैतिक भी बोल रहा है रिलीफ, रिलीफ, रिलीफ। शुभम भी बोल रहा है रिलीफ, रिलीफ मिलेगा सर। बच्चे मात्र 23 हैं, कुछ और भाग गए क्यों? रिलीफ। ऋषभ बोल रहा है सर शर्मा जी का लड़का रिलीफ, सर रिलीफ, ओके, वेरी गुड एवरीवन। मेनी ऑफ यू इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड, सर वो तो ठीक है, पर अगर बहन का 70% आ गया तो? अब सोच लो आगे। अब गाइस देखो, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या बोला, लेट मी म्यूट ऑल ऑफ यू गाइस फर्स्ट। अब देखो, सेम कंडीशन हुआ यहाँ पे, जैसे कि हम जानते हैं कि बोथ आर डिसेबल्ड, ठीक है ना, दोनों क्या थे कि डिसेबल्ड थे, राइट? आ रही बात समझ में ना, दोनों क्या है तो डिसेबल्ड है। बड़ी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। बट फिरदौस कंगा जो है इन द कंपैरिजन ऑफ स्टीफन हॉकिंग, वो क्या है ना कि बहुत कम है, ठीक है ना, डिसेबल्ड। तो वो जब उनको देखते हैं स्टीफन हॉकिंग को कि इतना डिसेबिलिटी के इंस्पाइट ऑफ दैट, इतना डिसेबिलिटी के बावजूद भी इन्होंने इतना ज्यादा अचीवमेंट हासिल किया है, ठीक है, और इनको इतना प्रॉब्लम है, ठीक है, इनको इतना प्रॉब्लम है, तो मेरा प्रॉब्लम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बिफोर स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस के सामने मेरा पेन, मेरा जो डिसेबिलिटी है, दैट इज नथिंग, ठीक है, और मैं कितना सोचता था, ठीक है ना। तो ये सारा बात बता रहा है, तो यहाँ पे भी देखो यही हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। बोला है ना कि उनको देखने के बाद ना मुझे एक राहत मिला, थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्या कि एक तो छोटी सी बात है कि मैं क्या नहीं हो सकता हूँ, खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं वॉक नहीं कर सकता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट स्टीफन हॉकिंस, देखो तो वो तो एक चेयर पे केवल बैठे रहते थे, इवन अगर उनको जाना रहता था देन ही वाज ओनली पंचिंग। आ रही बात समझ में ना, वो केवल पंच करते थे, समझ में आ रही बात, ऐसा सिचुएशन होता था। ओके गाइस, आ रही बात समझ में मेरी, सभी कोई को यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो ये सेंटेंस में इतना ही दिया गया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लाइंट ऑफ फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम। अब देखो बोलते हैं ना, अब देखो क्लिंच करने का मतलब फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लॉसेस इट्स मीनिंग। अब देखो वो बता रहे हैं ना कि आई टोल्ड हिम हाउ, मैंने बोला, यहाँ पे आई किसके लिए, तो ऑथर है वो बोल रहे हैं जो मिलने के लिए गए थे, ठीक है ना, फिरदौस जी, ठीक है। तो बोलते आई टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड किल्स ऑफ फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प मी। बोले ना कि ये आप जो है, ठीक है ना, कौन यहाँ पे आप, हमारी बात समझ में? तो यहाँ पे बात की जा रही है स्टीफन हॉकिंग की कि आप दूसरों के लिए, जो भी डिजेबल इंसान है उसके लिए, और एज वेल एज जो भी सही इंसान है, ठीक है, आप इतने डिसेबिलिटी के बाद इतना कुछ कर सकते हैं, देन व्हाई डू वी नॉट, ठीक है, कि और इंसान क्यों नहीं कर सकते हैं, वे लोग भी कर सकते हैं सारे वर्क को। ओके गाइस, तो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि ये क्या है, तो हम लोगों के लिए एक, बोलिएगा आप सभी, मोटिवेटर है। ओके, वेयर वाज आई, वेट, पूर्णिमा बोली इंस्पिरेशन है, वेरी गुड। शशांक भी बोल रहे हैं इंस्पिरेशन है, क्या बात है।
वेल डन बोथ ऑफ यू। चलो तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार आप लोग थोड़ा सभी कोई मैसेज करो, आई हैव टू सी दैट ओनली 22 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब देखो ना, लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे डिबेट। अभी अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, दे आर लिविंग क्लास, दिस इज नॉट गुड गाइज। और स्पेशली आप लोगों से मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन कभी नहीं है दैट यू विल लीव द क्लास। नो प्रॉब्लम सर। शुभम कुमार, वेरी गुड शुभम। अभी हम पूछेंगे आप ही से शुभम, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलते हैं, नो ही सेड, वो बोलते हैं कि नहीं मैं इंस्पिरेशन नहीं हूँ, ही सेड। ओके वेरी गुड आकांक्षा, ही सेड। ओके, ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, वो बोले उन्होंने ना कर दिया, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं हूँ, और बाद में इसको भी लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि ये क्वेश्चन उनसे पूछा। डेफिनेटली वो तो है ही इज अ मोटिवेशन। ओके, ठीक है ना, ये क्या है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि वो मोटिवेशन नहीं है हम लोग जैसे इंसान के लिए, वो है ही। इट वॉज ए रेडिकुलस क्वेश्चन टू आस्क टू हिम, ये बहुत ही, ठीक है ना, मतलब फुलिश वाला क्वेश्चन था जो मैंने किया। अब देखो अब क्या बोलते हैं, ये थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना तुम सब, ठीक है। आई होप यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है गाइस। अब देखो क्या बोलते हैं, नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, ठीक है। कौन बोला ये, ठीक है, तो फिरदौस जी बोलते हैं कितना मैं बेवकूफ था, कितना बड़ा बेवकूफ था कि मैंने ये क्वेश्चन उनसे पूछा। अब देखो यहाँ पे ना स्टीफन हॉकिंग का क्या रिप्लाई होता है, व्हेन योर बॉडी इज कैलस्ट्रोफोबिक, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to make me understand the meaning of claustrophobic, otherwise I will tell you. First of all I have to hear from all of you, what is the meaning of claustrophobic? Tell me guys, नो प्रॉब्लम, बता दो क्लस्ट्रोफोबिक का मतलब। चलो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग। ओके अब तो समझना मेरी बात को, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके जस्ट ओके गाइज, तो आप इस वर्ड को अंडरलाइन करो, पहले अंडरलाइन करो। अब समझना इसी शब्द में ना इस सारे पैराग्राफ का मीनिंग निकलेगा। व्हेन योर बॉडी इज अ क्लस्ट्रोफोबिक room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे स्टीफन हॉकिंग, क्या बोलते हैं कि जब आपका शरीर ना कैलस्ट्रोफोबिक हो, ओके मतलब क्या है कि वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, सफोकेटिंग सफोकेटिंग करने का मतलब क्या है ना, जैसे कि आप देखते हो ना कि आप फील करते हो कि आपको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी वो बोल रहे हैं कि दिन प्रतिदिन उनका क्या हो रहा था ना कि मतलब वो बता रहे थे कि सिकुड़ते जा रहे थे लाइक दैट, ठीक है। इट इज शॉर्ट काइंड ऑफ फोबिया, ठीक है ना, क्लस्ट्रोफोबिया जिसे बोलते हैं एब्नॉर्मल फियर ऑफ बीइंग एन इनक्लोज स्पेस, यानी कि ना छोटे स्पेस में क्या होते जाना, दबते जाना दबते जाना, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था कि वो घिरते जा रहे हैं, ठीक है, घरों में रहकर दबते जा रहे हैं। तो वही बता रहे हैं ना, इज एब्नॉर्मल फियर ऑफ बीइंग एन इनक्लोज्ड स्पेस, की चारों तरफ से घिरा रहना। आड़ी बात समझ में, तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए, ठीक है ना, इंस्पिरेशन हो, आड़ी बात समझ में, क्योंकि इट डजंट डू मच गुड, ये अच्छा नहीं होगा, नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यू स्टिल ब्रीथिंग। ओके, कि मतलब ये जानकर लोग मेरे पे खुश हो और देखिए कि अभी भी मैं क्या हूं, जीवित हूं और सांस ले रहा हूं। आड़ी बात समझ में ना, इस सेंटेंस से ये मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपसेट रहते थे अपने लाइफ से, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। अब बोलते हैं ना, अब देखो यहाँ पे फिर ऑथर क्वेश्चन पूछते हैं कि इज देयर एनी एडवाइस फॉर, इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। अब वो बोलते हैं कि क्या आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं डिसेबल्ड पीपल के लिए कि वो भी इस रास्ते पे जाके उनका लाइफ कुछ और बढ़िया हो जाए, ठीक है, उनका लाइफ भी बढ़िया हो जाए, लाइक योर लाइफ, नॉट लाइक योर लाइफ बट एटलीस्ट थोड़ा तो बढ़िया हो जाए।
अब क्या उनको एडवाइस दीजिएगा? देखो क्या बोलते हैं, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब देखो वो क्या बताते हैं, वो बोलते हैं ना कि उनको वही काम करना चाहिए जिसमें वो उनको रुचि हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, और वो करना चाहते हैं उसी काम को करें। अब ऐसा नहीं कि ओलंपिक्स गेम अगर खुलवा दिया जाए डिसेबल के लिए तो वो गया है इंसान तो मुझे भी उसमें जाना चाहिए, ऐसा नहीं, ये सही नहीं है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप आगे जाइए, आप उसमें बढ़िया करिएगा, ठीक है। ये उन्होंने बोला है यहाँ पे, आई नो व्हाट यू मीन। अब ये देखो बता रहे हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि आई नो व्हाट यू मीन, मैं समझ रहा था, ठीक है ना, मैं समझ रहा था कि वो क्या बताना चाहते थे। अब देखो यहाँ पे एक कहानी बताएंगे हमको, कौन? ऑथर। आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज। अब देखो बोल रहा है ना कि मुझे याद है एक समय की बात सॉरी गाइस ओके, मुझे याद है एक समय की बात, ओके, वो क्या बता रहे हैं, ठीक है, कि मैं अपने से बड़ा स्पेनिश एक गिटार था, उसको बजाने के लिए सीख रहा था, ठीक है ना, एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्प्रिंग इट वन नाइट। अब देखो बोला है ना कि हाउ मतलब कितना खुशी से मैंने एक रात क्या किया ना, उसका सारा जो तार होता है ना गिटार का, देखते हो ना वो वायर रहता है एक छोटा, वो बजाने पे, तो बोला है ना कि सारे वायर को मैंने क्या कर दिया, खोल दिया, क्योंकि वो मेरे से बजा नहीं, मैं सीख नहीं पाया, दैट्स वाई। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो, द हाफ आवर वाज अप, अब जाके आधा घंटा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इन दोनों का जो मिलने का समय था दैट हैज बिकम ओवर, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर योर ओके। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं जैसे इनका आधा घंटा कंप्लीट हो गया, जो इनको आधा घंटा मिला था इनसे मिलने का, आ रही बात समझ में ना, तो बोल रहे हैं कि मैंने आपको, लग रहा है कि मैंने आपको काफी डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा दुखी किया, ठीक है ना, परेशान किया। और वो कैसे इन्होंने बोला था, स्माइल करते हुए, थोड़ा हंसते हुए इन्होंने बोला, कौन कौन बोले ये? ठीक है, आई सेड ग्राइंडिंग थैंक यू फॉर, कौन? तो हमारे जो ऑथर है वो बोलते हैं, ठीक है ना, क्या? द हाफ आवर वाज अप, फिर से समझते हैं, आधा घंटा जैसे ही कंप्लीट हो गया, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू, मैंने आपको क्या किया, परेशान किया, ठीक है, इनफ, मैंने आपको काफी ज्यादा परेशान किया, ठीक है। आई सेड ग्राइनिंग, ठीक है ना, वो हंसते हुए, थोड़ा ज्यादा हंसते हुए, स्माइल देते हुए फेस पे उन्होंने बोला, थैंक यू फॉर, धन्यवाद इसके लिए। स्टे आई वेटेड, हैव सम टी। अब देखो ये क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं उधर से स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, कि रुक जाओ थोड़ा देर और चाय पीकर जाना, ठीक है ना। अब चाय पीने के लिए उसको वो रोकते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं स्टीफन हॉकिंग भी उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश थे, राइट गाइस, क्योंकि उन्हें वो रोक रहे हैं। अब सपोज करो कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वो आपसे मिलने के आया है, कब जाएगा कब जाएगा, जब वो खुद से जाना चाहे तो आप उसको रोकिएगा? बताइए आप लोग मेरे को, क्या आप उसको रोकिएगा? क्या बोलिएगा ठीक है कल मिलते हैं, ओके बाय, या आप लोग खुद ही बहाना कर दोगे, राइट, कि एक्चुअली हम लेट हो रहे हैं, हमको कोचिंग जाना है, अवंती क्लासेस में जाना है, राइट। हाँ वेरी गुड, शशांक बोल रहा है, ठीक है, ओके, ओके गाइस, वेरी गुड। और कोई मैसेज नहीं किया? अब देखो बोलते हैं, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें गार्डन दिखा सकता हूँ। द गार्डन वाज अ बिग एज अ पार्क, अब बोल रहे हैं ना कि वो गार्डन था एक पार्क की तरह बहुत बड़ा था, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन उस पार्क जो वो बहुत बड़ा पार्क था, उसके प्रत्येक इंच, ठीक है ना, यानी कि हर एक जगह पे, ठीक है, वो किसके साथ घूमे, ठीक है, तो हमारे फिरदौस गंगा जी के साथ वो घूमते, उसको घुमाते हैं अपने पार्क को, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, rumbling along in his motorized wheelchair while I dozed to keep out of the way। अब बोल रहे हैं ना कि वो हर एक 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 इंच, यानी हर एक पार्ट में, हर एक पार्ट में गए और हमको घुमाए, किस चीज से? एक्चुअली उनका तो क्या था, जो उनका व्हील चेयर था वो मोटराइज्ड था,
ठीक है, वो बटन को प्रेस करते थे, वो आगे की तरफ बढ़ने लगता था। और बोल रहे हैं कि आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, मैं रास्ते से हट जाता था। वी कुडंट टॉक वेरी मच, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि मैं रास्ते से हट जाता था, ठीक है ना। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम लोग ज्यादा देर तक बात नहीं कर सके क्यों। द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर ऑन हिज स्क्रीन स्पेयरिंग द ग्लेयर। अब देखो आप देखते हो ना कि अगर आप धूपा में सेलफोन को लेके बाहर निकलते हो, राइट एवरीवन, जैसे आप धूप में सेलफोन को लेके बाहर निकलते हो, क्या होता है, आपको स्क्रीन दिखाई नहीं ना देता है, ये दिखाई देता है जब काफी ज्यादा धूप पड़ रहा हो तो। अरे बोलो हाँ या ना गाइस, आई हैव टू सी दैट। आप लोग सुन रहे हो मेरी बात को, दिखता है कि नहीं दिखता है? टेल मी, शशांक इज मैसेजिंग, आदित्य ओनली, ओके। पूर्णिमा नो सर, वेरी गुड। अपर वेरी गुड। पीयूष नो सर, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। फजल नहीं दिखता है, वेरी गुड एवरीवन, नहीं दिखता है, हाँ सही है, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलो यहाँ पे फोकस करो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। ऐसे ही हो रहा था, अब देखो जो उनका स्क्रीन था ना, किसका था, स्टीफन हॉकिंग का, ठीक है, उस पे वो दिख ही नहीं रहा था कि वो पंच करके बात बता सके जो भी ये कुछ पूछ रहे थे। तो इसी के कारण इन दोनों के बीच में ज्यादा देर तक बात नहीं हो पाया। वी कुडंट टॉक वेरी मच, द सन मेड हिम साइलेंट, ठीक है ना। और सन ने क्या कर दिया, मतलब दिख नहीं रहा था तो कैसे टेक्स्ट पंच करेंगे और फिर बातों का रिप्लाई देंगे। तो लेटर ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेड। अब बारी बात समझ में ना, तो उस धूप में जो बहुत ज्यादा शाइनिंग वाला धूप था, ग्लेड विथ, ग्लेड मींस क्या होता है, शाइन विथ अ स्ट्रॉन्ग और डैजिंग लाइट्स, जो उस पे लाइट्स पड़ता है जिसके कारण क्या करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, और आधे घंटे बाद हम लोग तैयार हो गए, फिर क्या, वहां से जाने के लिए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, ठीक है ना। कौन, तो फिरदौस कंगा। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, बोला है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि मैं उनको पकड़ लूं या उनको किस कर लूं। आई टच हिज सोल्जर्स, मैंने उनके सोल्जर्स को टच किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, आई लुक्ड बैक एंड आई न्यू ही वाज वेविंग थ्रू, ही वाजंट watching him an embodiment of my bravest self, that one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. Okay, अब देखो यहाँ पे जाके ये कहानी समाप्त हो जाता है। तो वो बताते हैं, वो क्या बताते हैं, नहीं दिखता है, ठीक है, हाँ नहीं दिखता है, वेरी गुड। तो वो नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं दिखता है, वेरी गुड। तो अब देखो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे ना उनसे, जब लास्ट समय आ गया, जब अब ये मिल लिए थे उनसे, तो क्या करते, वो सोच रहे थे कि उनको पकड़ ले, उनको किस कर ले, या पकड़ के थोड़ा सा एकदम हैप्पीनेस वाला क्राई करे, ठीक है। बाद में क्या करते हैं, उनके व्हीलचेयर को थोड़ा सा टच करके उनको रूम आगे की तरफ पहुंचा देते हैं। और उसके बाद वो चले जाते हैं और बोलते हैं कि उसके बाद से जो मुझे उत्साह मिला, कॉन्फिडेंस मिला मेरे वर्क में, वो आज भी मेरे साथ कायम है। ओके एवरीवन, आई होप इस तरीके से हम लोग को समझ में आ गया होगा इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हियर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस चैप्टर। आप लोग इस चैप्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा। एनीवन, you can raise your hand and speak. Now I'm just giving you a chance, you can raise your hand and speak guys. You can raise your hand and speak. Avidas bola anybody can be a scientist. No. First of all, at his has mentioned that whatever you like to do, which will make your future bright, you people have to do first. ठीक है ना, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट और लगता है कि इससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, देन गो अहेड, ठीक है ना। बट ये समझना है गलत क्या होता है और सही क्या होता है, ये चीज समझना है। अब ये नहीं कि सर मेरे को मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या देखते रहूं, दिस इज नॉट राइट, ठीक है ना। रिगार्डिंग योर स्किल, रिगार्डिंग योर स्टडी, पहला चीज ये। दूसरा चीज ना, कि वी शुड नेवर, हाँ जी बोलो बोलो आप बोलो, वी शुड नॉट कंसीडर ओवर सेल्फ अनफॉर्चुनेट बिकॉज एवरीवन इज बोर्न विथ डिफरेंट एबिलिटी। वेरी गुड, दैट द सेम थिंग आई वांट टू से पूर्णिमा, वेरी गुड, सही बोला पूर्णिमा ने। वी शुड नॉट कंसीडर
ourselves unfortunate because everyone is born with different ability. Very good. Everyone has different ability. There is a need to work on it. Just analyze it, and if you work on it, definitely you will get success in your life, guys. आ रही बात समझ में ना? So first of all, you have to understand what is your work. Your work is that you have to complete the question answer of this chapter. पहला काम आप लोग का यही है that you people have to complete the question answer of this chapter. I will check, okay, and you have to send particularly on your homework site. जो भी आपका homework का site है उस पे आपको homework send करना है. Okay everyone, is it clear to all of you? Now moving ahead, guys. Moving ahead, now we have to discuss about, let me take pen, and after that I will say, okay guys, so first of all, now as we have completed this class, as I have said about homework, now we have to talk about debate, because हम चाहते हैं कि next session में, next class में हम लोग debate करें. So how many of you are interested to do debate? कितने लोग इसमें से interested है कि debate करेंगे? Very good, Akansha, raise your hand guys. I want to see that how many of you are interested to do debate. Only 7. अरे अभी डिस्कस करना है, छोड़ के नहीं जाओ ग्रुप को. अभी हम देख रहे हैं आप लोग में से कुछ बच्चे लीव कर रहे हैं. दैट इज नॉट राइट गाइज. इफ यू से देन वी विल डू, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. यू पीपल हैव टू पार्टिसिपेट. आकांक्षा, अविराज, पूर्णिमा. ओके गाइज, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि ये हमारे पास 18 स्टूडेंट है आई थिंक, राइट? अभी कितने स्टूडेंट्स है इसमें? 18 है. चलो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? और हम जैसे जैसे बोलते हैं ना, आप लोग लिखो. 19 से मेरे को लेके फिर एक कौन गायब हो गया? ओके चलिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी की तरह हम लोग देखते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग डिबेट करते हैं, ठीक है? समझने की कोशिश करो. यस, आई हैव म्यूटेड फॉर सम रीजन. ओके, जो हम लोग का टीम था ना, जो हमने टीम को बांटा था, वो हमारा तो 6 के 6 रहेगा दोनों तरफ. और उसके बाद से जो हम लोग के एक्स्ट्रा मेंबर्स होंगे उनको हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे. ओके गाइस, यही हमारा रूल रहेगा. जैसे कि हमने 6-6 में बांटा था ना, साथ साथ में. आई थिंक आई हैव डिवाइडेड 2 ग्रुप्स, राइट? एंड हु इज द कैप्टन? कौन कौन कैप्टन है उसमें? देखो, हम लोग ऐसे ही करेंगे. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. पूर्णिमा है. ओके वेरी गुड. ऑफ ग्रुप ए की कैप्टन पूर्णिमा है ना? एंड फ्रॉम द ग्रुप बी हु इज द कैप्टन? अपर मैन. ओके, तो चलिए, वेरी गुड गाइस. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट एंड आई होप दैट यू विल डू अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड वी विल डू अ लाइव डिबेट. ओके, हम लोग लाइव डिबेट करेंगे. आई विल टीच यू हाउ टू डू. ओके, अगर आप देखना चाहते हो तो विकास सर ने एक डेमोक्रेसी पे कराया था डिबेट, जो आपके अवंती क्लासेस में वो आपका होगा. आप उसको भी देख सकते हो. एंड वी विल डू डिबेट. ओके, हम लोग डिबेट करेंगे नेक्स्ट क्लास पे. एज आई हैव गिवन टॉपिक, इज गवर्नमेंट जॉब बेटर देन प्राइवेट जॉब? ओके, तो चलिए क्लास को इतना ही रखते हैं. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ गाइस. कैमरा ऑन रहेगा. ओके, एंड आई होप दैट यू ऑल विल प्रिपेयर. Bye guys, have a nice day. हाँ कांक्षा, कैमरा ऑन रहेगा.